से अभी स्टूडेंट्स ने बताया कि व्हाट आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, तो नेक्स्ट अब हम करते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। ओके, ये एक्चुअल नहीं है, इट्स एक्चुअल रिसोर्सेज। ओके, तो एनी स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल रिसोर्सेज? भावना शर्मा। Sir, may I? हाँ, कैन यू डिफाइन इट? हाँ, भावना शर्मा, कैन यू डिफाइन व्हाट आर द एक्चुअल रिसोर्सेज? Sir, Yamini Sharma can. Okay, Yamini. Sir, those resources which have been surveyed and their quantity has been assessed and their quality has been determined and are being used in present times are called actual resources. Okay, आप एग्जांपल बता सकते हैं? Give some examples of these actual resources. हाँ, yes. etc. क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने इनकी जितनी भी इनकी क्वालिटी है एंड इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये असेस कर लिए पहले से कि हमारे पास इसकी ऐसी क्वालिटी अवेलेबल है और इतनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल, हम कब तक हम इन्हें यूज कर सकते हैं हम इन्हें। ओके, इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी हमें मालूम है। ओके, इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स कि अगर इन टर्म्स में अगर हम मनी की बात करें कि अगर मनी को रिलेट करें तो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट इज नो अभी नहीं, महक 981। Yes, sir. महक, आप बता सकते हैं व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्सेज? Sir, those resources have been survived. Their quantity has been. It's not survive नहीं है, survey। ओके, survive नहीं है, it's surveyed। मींस सर्वे किया हमने उनका। ओके, their quality determined and are being used in present times are known as actual resources. Petroleum and natural gases. ठीक है, ओके, वेरी गुड। वंशिका, कैन यू टेल? Yes, sir. So actual resources are those resources which have been surveyed and their quantity has assessed and their quality has been determined and used in present time are known as actual resources. Okay, examples? Sir, coal, petroleum and natural gas. Okay, very good. Okay, Deepika. So those resources which have been surveyed, their quantity has been assessed, their quality determined, and are being in the present times. An example? So Bihar, India, petroleum and natural gas in Mumbai high fields, black soils of the Maharashtra and petroleum in West Asia. ओके, तो आपको जिस स्टूडेंट को डाउट था उसको डाउट क्लियर हो गया कि व्हाट आर द एक्चुअल रिसोर्सेज। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, आप बता सकता है कि व्हाट मीन बाय रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स को क्या कर रहे हैं हम? दिव्यांश। Sir, resource conservation is a process in which we are using coal and petroleum in large quantity. Coal and petroleum used in large quantity. Okay, no, ऐसा तो नहीं कहीं पर मैंने बताया कहीं। Sir, may I? ये तो आप ओके, दिव्यांश, आपने जो डेफिनेशन दी है आपने बताया कि हम कौन से रिसोर्स को कैसे यूज करें। हम आपने एग्जांपल दिया कोल एंड पेट्रोलियम कि हम उनको एज ए रिसोर्स हम यूज ऑफ रिसोर्स, हमने एग्जांपल दिया कोल एंड पेट्रोलियम। हाँ, ओके, अनुजा। सर, भावना शर्मा। Sir, in this we have reuse, recycle, refuse, and reduce the quantity of reduce the use of resources. ठीक है, ओके, ठीक है, राइट है आंसर, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन राइट है। ओके, हाँ, आदित्य।
Resource conservation is management of the use of natural resources to provide the maximum benefit to current generation while maintaining capacity to meet the needs of future generation. Aditya, it's not resource conservation, it's sustainable development. आपने जो डेफिनेशन बताई है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है. Aditya, my question is, what do you mean by resource conservation, not sustainable development? Aditya? हाँ, फिर से ट्राई करो आंसर, देने का. आदित्य, हाँ, फिर से ट्राई करो आंसर देने का. हाँ, क्या होती है रिसोर्स कंजर्वेशन? Resource conservation means using available resources carefully and giving them time to get renewed. अच्छा, थोड़ा सा राइट कह सकते हैं, अराउंड 30-40% रख लेते हैं कि आपका आंसर राइट है. ओके, हाँ. नेक्स्ट इज वंशिका. Yes, sir. Sir, the वंशिका plan. ने मुझे हैंड रेज किया. Yes, sir. For the plan management of natural resources for optimizing their utility, efficient usage, reuse and recycling is known as resource conservation. ओके, वेरी गुड वंशिका. ओके, देखो, रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स है अगर हम किसी भी सब्सटेंस, अगर मान लेते हैं कि वो रिसोर्स है हमारे लिए. ओके, रिसोर्स कैसे कहते हैं हम, कि अगर हमारी कोई डिजायर, कोई हमारी नेसेसिटी, अगर कोई हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम किसी थिंग या किसी सब्सटेंस से अगर उसे फुलफिल कर रहे हैं हम, ओके, हमारी जो जरूरत है अगर वो पूरी हो रही है, तो हम उस सब्सटेंस को कह सकते हैं कि रिसोर्स है हमारे लिए. ओके, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ जो ह्यूमन के डिजायर्स है वो काफी इंक्रीज हुए हैं वो. ओके, तो हम डिफरेंट थिंग्स और सब्सटेंस को हम यूज कर रहे हैं, उनसे हम काम ले रहे हैं. ओके, तो हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं हम उसे. ओके, अब रिसोर्स कंजर्वेशन मींस कि जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस, जिस मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, हमने उसको इस तरह से यूज करना है, उसे बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने उसे यूज करना है. ओके, उसे हमने बिल्कुल प्लानिंग के साथ, बिल्कुल प्लान्ड मैनेजमेंट के साथ हमने उसे यूज करना है. क्या यूज करना है, जो आपको दिए हैं, फॉर ऑप्टिमाइजिंग देयर यूटिलिटी, एफिशिएंट यूजेस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग. ओके, मतलब एक ही चीज को हम बार बार यूज कर सके, हम चाहे उसे रीयूज भी कर सकें, उसमें कुछ चेंजेस करके उसको रिसाइकल करके हम उसको यूज कर सके, हम की यूटिलिटी है जो उसकी ऑप्टिमाइजिंग रिक्वायरमेंट है, ओके, उसे भी फुलफिल कर सके हम. ओके, तो हमने जिस चीज को यूज कर रहा है, हमने बिल्कुल प्लानिंग और प्लान्ड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना है हमने उन रिसोर्सेज को. ओके, तो हम उसे कहेंगे कि हम रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं. ओके, अब बात करते हैं कि इसकी जो मेन एम है, रिसोर्स कंजर्वेशन का मेन एम क्या है. ओके, देखो, जिस रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, हमने उसे उतना ही यूज करना है. ओके, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को यूज करें तो हमने पूरा यूज कर लेना है, उसको उतना ही यूज करना है हमने जितना हमें जरूरत है उसकी. हमने उसकी वेस्टेज नहीं कर रही है हमने. ओके, ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? देखो, सिंपल वर्ड्स में तो यही मीनिंग. अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन काफी स्टूडेंट्स ने, वंशिका ने भी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई, आदित्य ने भी थोड़ी बहुत राइट बताई है. ओके, यामिनी ने भी बिल्कुल राइट है. तो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया कि क्या है, कि हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज को अगर यूज करें हम, ओके, तो हमने उसे उतना ही यूज करना है जितना हमें जरूरत है, हमने उसकी वेस्टेज नहीं करनी है. ओके, और कैसे यूज करना है उसको, बिल्कुल प्लानिंग और बिल्कुल प्लान्ड मैनेजमेंट से यूज करना है, ताकि हम उसको बिल्कुल एफिशिएंट उसका यूज भी कर सकें, उसे रीयूज भी कर सकें, उसे रिसाइकिल भी कर सकें हम. ओके, कह सकते हैं कि कंजर्वेशन. ओके, अब देखो कि कहाँ से यूज करना है. अगर फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करें तो फाइनल स्टेज. ओके, फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज तक हम उसे यूज करेंगे, उसे अच्छे से हम उतना ही यूज करेंगे जितनी हमें जरूरत है. हम बाकी जितने भी जरूरत नहीं है हमने वेस्ट नहीं करनी, और उसे हमने सेव करके रखना, बचा के रखना है हमने. ओके, तो उसे कहेंगे हम रिसोर्स कंजर्वेशन. और इसी रिसोर्स कंजर्वेशन में जो मैंने आपको बताया था कि 4 गोल्डन आर जिसे कहते हैं, वो भी यूज हुए हैं. ओके, 4 टर्म्स हैं जो आर्स को रिकॉग्नाइज करती हैं. ओके, आर से स्टार्ट होते हैं कुछ वर्ड, जो 4 मैंने बताए थे आपको, गोल्डन आर. ओके, तो फर्स्ट था हमारे पास, फर्स्ट आर रिड्यूस, सेकेंड आर रीयूज, थर्ड आर इज रिसाइकल एंड फोर्थ इज रीयूज. ओके, सॉरी, रीयूज नहीं, रीयूज हो गया, रिफ्यूज. ओके,
कंजर्वेशन हम क्या क्या करते हैं, इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया थे। फर्स्ट मैंने आपको बताया था प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, कि हमने जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसे हमने प्रिजर्व करना है, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना है हमने, उसकी वेस्टेज नहीं करनी है हमने, जो हमारे पास फ्रेश वाटर जो हम जिसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, एंड उसके साथ में क्या करना है, और अगर कोई हमारे पास वेस्टेज है वाटर की, अगर पॉल्यूटेड वाटर, तो हमने उसको रीजनरेट करके, रिसाइकल्ड करके उसे बिल्कुल हमने ड्रिंकिंग वाटर के इक्वल बनाना है उसे। ओके, रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर भी करना है हमने। ओके, ये कुछ एक एग्जांपल बताए थे मैंने आपको कि फ्रेश वाटर को प्रिजर्व करना है, एंड अगर वेस्ट वाटर हमारे पास तो उसे रिसाइकल करके हमने यूजेबल बनाना है हमने। ओके, हाँ, अनदर टॉपिक अब क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। हाँ, ओके, किसी और टॉपिक में डाउट है आपको? कोई भी टॉपिक चैप्टर नंबर 23 से मैं आपसे क्वेश्चन आस्क करना स्टार्ट करूंगा फॉर रिगार्डिंग योर टेस्ट। Yes, sir. Development. Okay. Okay, my first question is define the term productivity. Define the term productivity. और मैंने अब काफी अच्छे से बताया था क्लास में कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ओके, तो क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म प्रोडक्टिविटी, और इसका आंसर मुझे देंगे रिया। Yes, sir. Define the term productivity. Sir, the rate which resources are produced is known as productivity. Okay, very good. Very good. Okay. Kanish Kumar. Kanish. Kanish. Kanish, I am audible to you. Kanish 2333. Kanish. Kanish, I am audible to you. मुझे लगता है शायद इसकी तरफ सिग्नल नहीं है। हाँ, ओके, अभिनव। अभिनव। यस सर। अभिनव। यस सर। हाँ, ओके, अभिनव, कैन यू डिफाइन द टर्म प्रोडक्टिविटी? Can you repeat again? Abhinav. Repeat again. Okay, I think his sound is not proper. Abhinav, my question is define the term productivity. Okay. Kanika 2934. Kanika. Kanika, I am audible to you. Your voice is not coming. Kanika 2934. Yes, sir. Kanika, define the term productivity. आपको आंसर आता है ये? Just say yes or no. Okay. Ananya Dogra. Sir, Divyansani. Ananya Dogra. Ananya Dogra 1769. Students, I am audible to you. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. तो ये बाकी स्टूडेंट्स ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी कि मेरी साउंड नहीं क्लियर आ रही है इन्हें? सर शायद नहीं आ रही होगी। ओके, अनुजा 3253। अनुजा, आपका कैमरा भी ऑफ है अभी तक काफी। ओके, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ, अभिमन्यु, अभिनव एंड सेकंड अभिनव, आदित्य, अक्षित, अनुजा, आयुष, पर्थ, समर, अनन्या डोगरा एंड शाश्वत। बेटा सभी के कैमरा क्यों ऑफ है सभी के? मैंने कितनी बार क्लास में कहा है कि किसी का भी कैमरा
सर मैं डिस्कनेक्ट ओके, सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन होना चाहिए, कैमरा अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए। ओके, एक्सक्यूज मी सर, पर आपका कैमरा अभी भी ऑफ है। एक्सक्यूज मी सर, यस, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। क्वेश्चन क्या था? हाँ बेटा, योर नेम? सर अनन्या डोगरा। हाँ ओके, अनन्या डोगरा। माय क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी। The rate at which the resources are reduced is known as productivity. ओके, द रेट एट विच द रिसोर्सेस आर Reduced. द रिसोर्सेस आर, आगे क्या बोला आपने? Produced is known as productivity. ओके, हाँ ओके, गुड। Yes sir. ओके, दिव्यांश आप कह रहे थे आंसर बताने के लिए। हाँ दिव्यांश। Yes, sir. Sir, at the rate at which resources are produced is known as productivity. ओके, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट इज कसक 1201। हाँ, find the term productivity. The rate okay. at which resources are produced is known as productivity. ओके, वेरी गुड। हाँ, सृष्टि। सृष्टि, हाँ सृष्टि, डिफाइन द टर्म प्रोडक्टिविटी। सृष्टि, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो मैं भी आपको बता देता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्टिविटी। ओके, तो रिसोर्सेज को जिस रेट से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ओके, हम किसी भी सब्सटेंस को जिस रेट से हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ओके, उसे हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी। ओके, तो आपने इंग्लिश में आएगा द रेट एट विच द रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड। ओके, रिसोर्सेज को हम जिस रेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ रिसोर्सेज की होती है। ओके, अगर हम किसी मटेरियल या किसी सब्सटेंस की बात करें तब भी हम उसे प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। ओके, जैसे अगर उसके किसी सब्सटेंस की बात करूं, द रेट एट विच सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड और दिस थिंग इज प्रोड्यूस्ड इज एज प्रोडक्टिविटी। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज what are human made resources? Okay, human made resources कौन कौन से हैं? हाँ, okay, okay, no, सचिन कुमार, सचिन 3298। हाँ सचिन, human made resources. Those resources which are deployed by natural substance as known as human made resource. ओके सचिन, आपने जो बोला है, ओके, थोड़ी सी आपने प्रोनाउंसिएशन गलत की है। ओके, दोज रिसोर्सेज विच आर डेवलप्ड, ओके, विच आर डेवलप्ड। ओके, आपने डेवलप तो बोला है, डेवलप Sir, फ्रॉम नेचुरल, ओके, आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन आपने ठीक करनी है। ओके, हाँ, सेकंड, उसके बाद है शिवानी 1087। Yes, sir. Those resources which are developed from natural resources are known as human-made resources. हाँ शिवानी, देखो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आएगा, नेचुरल सब्सटेंस। ओके, क्योंकि हम रिसोर्स की डेफिनेशन दे रहे हैं ना। ओके, तो दोज रिसोर्सेज विच आर डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। ओके, जिन्हें हम नेचुरल सब्सटेंसेस से हम उन्हें डेवलप करते हैं, किसके लिए? रिसोर्स के लिए। ओके, तो हम उन्हें कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्यों कहते हैं ऐसे हम? क्योंकि इसकी जो डेवलप्ड है उसे कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहे हैं। ओके, ह्यूमन अपनी नीड्स को फुलफिल कर उस सब्सटेंसेस को डेवलप कर रहा है, रिसोर्स में यूज कर रहा है। कौन कर रहा है? ह्यूमन। तो हम उसे कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, अब इसका कोई इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो शिवानी आप एग्जांपल बता सकते हैं कोई इसका, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? Yes, sir.
Sir, fresh water in natural resources, water bucket, dam, and windmill. ओके, विंड मिल भी हो सकता है. ओके, Yes, sir. एंड अनदर और एग्जांपल्स. Sir, may I? जितनी Canal. जितनी भी थिंग्स ह्यूमन ने बनाई हैं, ओके, जितनी भी थिंग्स ह्यूमन ने मेड की हैं, वो सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं. अगर मोबाइल फोन की बात करें, ह्यूमन मेड रिसोर्स है. अगर आपने जो बुक जो आप रीड कर रहे हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स है. ओके, किसी भी चीज की बात करेंगे जो कि ह्यूमन ने बनाई हो, सिर्फ नेचुरल को छोड़ के. ओके, जैसे नेचुरल, जैसे मैंने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे एयर होगी, वाटर होगी, ओके, विंड होगी, ये ह्यूमन ने नहीं बनाई, ये नेचुरल है हमारे पास. ओके, जितनी भी चीजें हम मैक्सिमम हम यूज कर रहे हैं हम, ओके, जो कि ह्यूमंस ने बनाई है. ओके, तो इसमें क्या है, देखो, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की मीन्स ह्यूमन ने क्या किया, उसके पास कोई चीज अवेलेबल थी, मान लेते हैं कोई नेचुरल रिसोर्स उसके पास अवेलेबल है. ओके, जैसे एग्जांपल दिया गया है फ्रेश वाटर. ओके, तो फ्रेश वाटर क्या है, एक नेचुरल है. ओके, तो ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने कुछ उसमें डेवलपमेंट कर दी, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए ह्यूमन ने उसमें. ओके, ताकि उसे फिर से वो यूज हो उसी चीज को वो. ओके, अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर हमारे पास ऐसे रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास. ओके, तो ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने कुछ उसमें डेवलपमेंट कर दी. कुछ क्या किया उसने, फ्रेश वाटर से या रिवर्स में जो फ्रेश वाटर रन करता है, उसने उसमें डैम्स बना दिए. ओके, कैनल्स बिल्ड कर दी. तो ह्यूमन ने अपनी कुछ ना कुछ उसमें अपने आउटपुट उसमें इनपुट कुछ इंक्लूड उसमें. ओके, तो उसे हमने कहा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में और भी एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि ब्रिक हो गया, कोई फैक्ट्री होगी, सीमेंट हो गया, या फिर एक्सेट्रा, है ना, बहुत सारी चीजें, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, या चश्मे हो गए, स्पेक्टेकल्स हो गए, जितनी भी चीजें हैं. हाँ, ओके ओके. तो माय थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द यूबिक्विटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस. ओके, यूबिक्विटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस देंगे अरुण. Yes, sir. अरुण चौधरी. हाँ, Yes, अरुण sir. चौधरी, कैन यू डिफाइन व्हाट आर द यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस. Ubiquitous resources, resources which are found everywhere, are known as ubiquitous resources. Ubiquitous resource. Resources which are found only in certain specified or limited areas of the world are localized resources. हाँ, तो अरुण चौधरी, आपने क्या किया है, आपने आंसर बिल्कुल रीड. ओके, आई डोंट नो आपने बुक को देखा है या आपने अपने क्वेश्चन आंसर देखे, लेकिन आपने आंसर जो रीड किया आपने. ओके, रीडिंग में और ऐसे बताने में बहुत डिफरेंस होता है. ओके, अरुण चौधरी, थोड़ा कैमरा की तरफ देखकर आंसर बताओ कि व्हाट आर द यूबिक्विटस रिसोर्सेज. ओके, बुक की तरफ नहीं देखना है, और अपने कैमरा को अच्छे से एडजस्ट करो. ओके, ऐसा लग रहा है कि आपने अपना फोन को नीचे बेड पे रखा और आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से झांक रहे हैं नीचे. ओके, फोन को बिल्कुल सामने रखो ऐसे. ओके, हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट इज शुभांगी नारायण. Sir, Shubhangi. नारायण. हाँ, शुभांगी, इसमें एच कहीं भी नहीं है इसमें. हाँ, शुभांगी. ओके, हाँ, शुभांगी 2993 रजिस्ट्रेशन नंबर. हाँ, कैन यू डिफाइन यूबिक्विटस एंड लोकल रिसोर्सेज. शुभांगी, जस्ट से यस और नो. आपको आंसर आता है, आपको आप यस और नो भी कर सकते हैं. अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ आपको यहाँ पे. शुभांगी, आई एम ऑडिबल टू यू. शुभांगी, आपने कैमरा भी अच्छे से एडजस्ट नहीं किया है. अरे शुभांगी, आंसर नहीं आता है तो जस्ट से यस और नो, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको आंसर आता नहीं और मेरे आपके पास साउंड बिल्कुल क्लियर आ रही है और नहीं आ रही है. पता नहीं, साउंड नहीं आ रही है और
हाँ, सक्षम, सक्षम। Sir, can I? हाँ, नो बेटा, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, ओके, उनसे भी आंसर लेना है मुझे। अक्षित चौधरी, अक्षित चौधरी, वैष्णवी, शाश्वत, अभिमन्यु एंड अभिनव। इन स्टूडेंट में से कोई भी आंसर दे सकता है। अक्षित चौधरी एंड अक्षित, अभिनव, वैष्णवी, शाश्वत, अभिमन्यु। आप सभी के कैमरा ऑफ हैं, आप सभी के, जिन स्टूडेंट्स के नेम लिए मैंने अभी। स्टूडेंट्स, आपके कैमरा क्यों ऑफ है? हाँ, शाश्वत बेटा, अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। आपका कोई फायदा नहीं है ऐसे क्लास अटेंड करने का, अगर आपने कैमरा ही ऑफ रखनी है। अक्षित, शाश्वत एंड अभिमन्यु एंड अथर्व ठाकुर। हाँ, अथर्व ठाकुर, अथर्व। ओके, जरा मैं अटेंडेंस ले लूं जरा इनकी। ओके, जो स्टूडेंट अभी आंसर नहीं करेगा, ओके, उसे डायरेक्ट क्लास से रिमूव करूंगा। ओके, सेकंड टाइम में उसका ध्यान से। ओके, पहले मैं जरा अटेंडेंस ले लूं सभी की। ओके, जिस स्टूडेंट्स का मुझे मालूम है, लेकिन जिनका नहीं मालूम है। ओके, महक, शिवानी, भावना, दीपिका, रिया। ओके, अक्षित चौधरी, अक्षित, अगर आपने रिप्लाई किया तो ओके है, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं। ओके, अक्षित 2133। अभिनव, हाँ, ओके, दीपिका चौधरी। Yes, sir. दीपिका, हाँ, दीपिका, what are the ubiquitous and localized resources? So that resources are found everywhere. That are ubiquitous sources and Ubiquitous resource localized example. resources are that found in some specific areas are known as localized sources. Okay, examples भी बताना दोनों के। फर्स्ट ubiquitous resource के एग्जांपल। एग्जांपल, आपने एग्जांपल नहीं बताया मुझे। दीपिका, Sir. ओके, अनुजा 3253। Yes, sir. अनुजा, what are the ubiquitous and localized resources? Creative resources, natural resources which are found everywhere are known as ubiquitous resources. Localized resources, natural resources which are found only in certain specified or limited area of the world are known as localized resources. Ubiquitous resources, for example, Okay. Water, air, Water, sunlight. water, air, sunlight. Okay, and localized resources. Copper, iron, uranium, etc. Uranium, copper, iron और यूरेनियम एंड एक्सेट्रा। ओके, तो देखो यूबिक्विटस रिसोर्स होते हैं कि कोई भी रिसोर्स जो हमें हर कहीं मिल जाता है हमें। ओके, विच आर फाउंड एवरीवेयर, कहीं पे भी जाएंगे आप वहां को आपको मिल जाएंगे। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने रूम में बैठे और बोले कि मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। ओके, जैसे एग्जांपल करें सनलाइट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है सनलाइट के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप अपने घर में छुप के बैठे और बोले मुझे सनलाइट नहीं मिल रही है। ओके, तो दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन एवरीवेयर, ओके, दीज आर नोन एज यूबिक्विटस रिसोर्स। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक एयर, सनलाइट, वाटर, है ना, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके।
ओके, उसके बाद बात करें सेकंड रिसोर्सेज की, लोकलाइज रिसोर्सेज। ओके, देखो वो रिसोर्सेज जो कि हमें किसी सर्टेन स्पेसिफाइड और किसी लिमिटेड एरियाज में ही मिलते हैं, हमें हर कहीं हमें नहीं मिलते हैं। ओके, एवरीवेयर फाउंड नहीं होंगे, सिर्फ स्पेसिफाइड कुछ लिमिटेड एरियाज, ओके, जो कि वर्ड्स के वहीं पे आपको फाउंड होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे कि लोकलाइज रिसोर्सेज की मींस ये जो रिसोर्सेज है हमारे पास लोकल है ये। ओके, जैसे कि आप डिफाइन करते हैं, अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, ओके, तो अगर आप किसी को पूछेंगे, किसी का नाम पूछेंगे, ओके, तो आप पूछोगे सबसे पहले कि हाँ भाई तो आप कहाँ से हो, आप, वो बोलेगा कि हाँ मैं नगरोटा भगवान से हूँ। अच्छा अच्छा आप तो लोकल ही हो फिर तो। ओके, ये थोड़ा फर्क है। ओके, लोकलाइज रिसोर्सेज की मींस आपको किसी सर्टेन स्पेसिफाइड और लिमिटेड एरियाज में ही आपको रिसोर्सेज फाउंड होंगे। ओके, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, आयरन और यूरेनियम, क्योंकि हर कहीं नहीं मिलते हैं। ओके, स्पेसिफाइड एरियाज में